वादी नीलम का छोटा सा गांव हलमत और उसके बहादुर और मिलनसार लोग किस तरह हर वक्त भारतीय गोलाबारी की जद में रहते हैं, मुझे और मेरी टीम को इस अंधेरे बंकर में खौफ के साए तले रात गुजार कर अंदाजा हुआ। लेकिन इस तारीक रात के बाद की किरणें और भी ज्यादा रोशन थी, क्योंकि अब मेरे और मेरी टीम के इरादे और भी ज्यादा मजबूत हो चुके थे कि हम आज़ाद कश्मीर के हर दरीचे को अपने नाज़रीन के सामने लाएंगे, ताकि अक़वाम आलम को पता चल सके कि भारत किस तरह न सिर्फ इस पार बल्कि सरहद के उस पार भी खून की होली खेलता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही हम अपनी अगली मंजिल केल और अरंग केल की तरफ रवाना हुए। केल तहसील शारदा का एक छोटा सा कस्बा है और सतह समंदर से तकरीबन 8,800 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। यहाँ पर 19,000 फुट बुलंद चोटी सारावाली केल वाक़या है। जब मेरी टीम केल पहुंची तो केल की फिजा में एक महसूर कुन नगमे ने हमें अपनी तरफ खींच लिया। सुबह के वालहाना इस्तकबाल ने हमें और भी ज़्यादा पुरजोश कर दिया। हमने पहले अरंग खेल जाने का फैसला किया। ये केल से मुतसिल ऊंची पहाड़ी की चोटी पर वाक़या है। एक खूबसूरत सा गांव है जहां तक पहुंचने का वाहिद जरिया केबल कार्ट है। अरंग खेल के फलक बोस और बर्फ पोश पहाड़ हकीकी तौर पर जन्नत नज़ीर वादी की अक्कासी करते हैं। इसी वजह से अरंग खेल पूरी दुनिया के सयाहों की तवज्जो का मरकज बन सकता है। And right now we're all set and packed to go to Arang Khel. Arang Khel is the most popular resort in Kashmir. If you come to Kashmir, you cannot miss Arang Khel. Let me tell you how to go to Arang Khel. You can only go through one of the ways to go to Arang Khel is chairlift. It is kind of in a height. I am a little scared of height, but this is the time to get over of all your fears. I want to give you a piece of information that Arang Khel has two parts. One is chairlift, and second is to be able to go to mountain, you have to hike. And for hiking, other than warm clothes, you need only one thing, is stick, hiking stick. So this is must need. And this is so convenient that they have a small shop where they sell these hiking sticks. So let's go and ask them how much is it and what else they sell over here. अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? तो आपके पास हाइकिंग स्टिक्स हैं अरंग खेल जाने के लिए?
जी। और ये कितने की एक स्टिक है? 30 रुपीज रेंट होता है इसका। ओह, अच्छा आप रेंट पे देते हैं? दैट्स फैंटास्टिक। वापस इधर ही जब लगानी होती है, ऊपर हाइकिंग के लिए लोग लेकर जाते हैं। अच्छा अच्छा जब अच्छा इधर ही करानी होती है। अच्छा अच्छा। सो दे हैव अ स्टिक जो कि you can rent only, सिर्फ रेंट कर सकते हैं ना? 30 rupees. So it's only for rent and it's 30 rupees, which is like peanuts. Let me just see if I can grab some quick snack. आपके पास गाला बिस्किट है? डाला है। एक गाला बिस्किट दे दें। So as most of you know that my favorite biscuit in Pakistan is Gala, so I cannot go up there without it. Arankale is one of the most popular resort area in Kashmir. If you ever come visit to Kashmir, this is the most popular area. So why it's popular? One of the reasons is chairlift, as you can see behind me. It's a little scary. It can be scary for some people, as I'm not a height phobic, but I do get a little nervous. But I'm very excited. Kashmir is the place to be fearless, to explore, to adventure. So exciting and fantastic. I am a little nervous. Yes, I think I can do it because we need to get over of our fears, and I am absolutely ready to take this chairlift to Arankale. Look, let's see. This is kind of a buggy kind of thing, which is going towards Arankale. I'm getting nervous. Let's see. So hopefully I can show you what's down there. It's Darya Neelam, and you can see all those big mountains. So we are going towards Arankale, and you will see a hut over there. We'll exit there. From there, we will start our trek to go to actually the point. So it is scary, but fun at the same time, you know. Khul ke jiyo, right? And look at these trees are so tall, and we are going to be sitting on the top of mountain, and probably we'll camp tonight over there. I don't know, let's see if it's not actually freezing cold. They have a really good rest houses. You can rent it, you can do bonfire, you can do a lot of fun activities up there. Set and ready to hike. Let's go ahead, go. So right now I'm going through steps, but a little further there will be actual hiking. I'm missing Ghoda and Baraf. Hiking track is way much easier than Rati Gali. That was a little rough, and I think the only reason that was rough was because that day was extremely cold and snowed. So everything was snowy, slippery and muddy over there. But over here, it's actual hiking. Okay, let's drink water. These are all sort of plants and everything. What is this? I think this is some sort of mushrooms. It is so peaceful and quiet over here. It's not the peak season right now. I'm glad. It's very quiet and peaceful. You can hear sounds, different kind of sounds, which are very pleasant and soothing. Birds are chirping. You know, different tarah ki birds or animals ki sounds are here, which is very pleasing and very soothing. So let's keep moving. The trick is you don't need to hike very fast. Just keep moving, even just slowly, because we want to come back before sunset. As you can see, there are a bunch of trees and plants over there, over here, which gives a very nice aroma to this place.
And you can smell, listen, breathe at the same time. All this fresh air. You can tell there's a lot of organic fertilization over here on the ground, which tells us that all the animals hike over here too, along with people. So it's a very popular hiking place over here, and it's not that bad. We're about to reach. I'm a little tired and dehydrated, so I think I need water. मैं इस वक्त अरनखेल में हूँ और यू कैन सी ब्यूटीफुल सीनरी बिहाइंड मी। और मैं देख रही हूँ बहुत सारे दरख्त कटे हुए हैं, तो ये किस तरह से काटते हैं और इसका क्या करते हैं आप लोग? क्योंकि यहाँ पे लाइट वाला कोई निज़ाम नहीं है, बिजली वाला नहीं है। ये हमने अपने तौर पे छोटी छोटी मोटरें लगाई हुई हैं, उनसे हम सिर्फ बिजली हासिल कर सकते हैं। वो ईंधन के तौर पे हम उससे तो आपको कहने फायदा का हो मतलब सकता ये है कि अगर यहाँ बिजली हो तो फिर आप हाँ, ये दरख्त कटाई पे ये दबाव कम हो जाएगा। ये इतना खूबसूरत सामान है, यहाँ की जो लोकल खवातीन है वही बनाती हैं। नहीं, ये मकबूजा कश्मीर से आए। मकबूजा कश्मीर में जो लोकल है वो बना रहे हैं। So I have just reached to Arunkhel. Hiking was very interesting. It was good, very safe. But after reaching over here, I actually have no words to say. It is so beautiful. I'm sitting here on top of mountain and I can see snow at one mountain. I can see lush green mountains and I can see autumn leaves. So by sitting at one spot, I can see winter, I can see fall, and I can see spring. It is so amazing. And honestly, after sitting here, मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आ रही थी, like to describe this thing. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. I don't know how to express that there is a power who's taking care of everything. मैं इस वक्त अरनखेल में हूँ और यू कैन सी ब्यूटीफुल सीनरी बिहाइंड मी। और मुझे लकीली मुगल साहब मिले हैं जो वो हमें इस पूरी जगह के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। सो लेट्स गो एंड टॉक टू हिम। अरनखेल गांव तकरीबन 200 साल से आबाद है। अच्छा, 200 साल से। तो उस वक्त यहाँ का जो था ना रोड थी, कुछ भी नहीं था, डोगरे की हुकूमत थी उस वक्त यहाँ पे जी। हमारे जो आबा अजदाद यहाँ रहे हैं जी, वो नौशेरी से, बालाकोट से, कपवाड़ा से जाके खुर्द नोश लाया करते थे उस वक्त। अच्छा, जो कि कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से कपवाड़ा 2-3 दिन, लगभग 2-3 दिन चल के अपना खाने पीने का सामान लाते थे। और यहाँ से नौशेरी 7 दिन बाद नौशेरी से 60 केजी बोझ लेके यहाँ पहुँचते थे। ओह माय गुडनेस। अच्छा, उस वक्त यहाँ पे हमें पाला गया है जी। अब यहाँ पे रोड आ चुकी हुई है। आप यहाँ कितने सालों से हैं? यहाँ 200 साल से ये गाँव आबाद है। मैं यहाँ जब मेरी उम्र है 50 साल लगभग। तो आप यहीं पैदा हुए? ये पैदा हूँ, यहाँ ही रहा हूँ, बाकी सर्विस किया मैंने भी। अच्छा, किस तरह की चीजें खाते हैं, कौन सी चीजें उगती हैं, घर किस तरह से, जाहिर इतनी ऊंचाई पे है, किस तरह से आप मैनेज करते हैं अपना हर रोज? ज़राअत के लिहाज से ये जो ज़मीन है अरनखेल की, एक फसल जो भी इसमें काश्त करें, गंदम भी यहाँ पे होती है, मकई भी होती है, आलू, लोबिया, अच्छा, हर किस्म के, गोभी, टमाटर, हरी मिर्चें, भिंडी, हर किस्म की फसल होती है ज़राअत के हवाले से। अच्छा, यहाँ पे। और यहाँ बिजली होती है? बिजली अपनी मदद आपके तहत बिजली बनाई हुई है। आपने बिजली भी बनाई हुई है? मदद आपके तहत बनाई हुई है। अब बेसिकली आप सब्जियां भी यहीं उगाते हैं, बिजली भी यहीं है। इतनी खूबसूरत पहाड़ है, तो ज़ाहिर है जैसे आपने कहा कि टूरिज्म बहुत आता है, और मेरा भी यही ख्याल है कि बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है।
इससे ज़्यादा खूबसूरती मैंने और कहीं नहीं देखी है। तो जब सर्दियों में ये जो पहाड़ है, लोग यहाँ स्कीइंग करते हैं? जी सर। तो कब स्टार्ट होती है और कब खत्म होती है? मार्च और अप्रैल 2 महीने। मार्च और अप्रैल 2 महीने। ये मेरे पीछे वो जगह मुकाबले हुए हैं यहाँ पे पूरे साल। जी सर। इधर नीचे तक कभी 10-12 फुट बर्फ आ जाती है, कभी 3-4 फुट तक महदूद रह जाती है। अच्छा, यहाँ टूरिज्म इतना ज़्यादा है, लोग स्कीइंग करने आते हैं, गर्मियों के मौसम में भी लोग आते हैं, सर्दियों के मौसम में भी आते हैं, और मैंने देखे बड़े खूबसूरत खूबसूरत हट भी इधर हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ जाए तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ जाते हैं तो फिर वो एक सिस्टम का पेइंग गेस्ट हाउस, अच्छा, वो सिस्टम का वो बना लेते हैं उस वक्त। तो किस तरह से लोग क्या आके दरवाजा पूछते हैं? नहीं, वो पता होता है यहाँ सबको, मोबाइल है उठाया, हम भाई मेहमान है, कमरा है आपका खाली। अच्छा, ठीक है जी, बस मेहमान आया रहा, खाना पीना उसका होटल पे हो गया, कमरा उसको वहाँ मिल गया। अगर ज्यादा हो गए जी, उस सूरत में ये हो जाता है। नहीं तो फिर ये आर्मी के इधर बंदोबस्त कर लेती है आर्मी उस वक्त। कोई ज्यादा मसला हो जाए तो फिर आर्मी यहाँ। तो अगर मुझे, जैसे मैं आई तो टूरिज्म पुलिस भी आ चुकी हुई है जी। अच्छा, टूरिज्म पुलिस भी आ चुकी हुई है, कोई टूरिस्ट बीमार हो जाए, कुछ हो जाए। How cute. यहाँ लोग अपनी मदद आप के तहत they survive. Like सब कुछ, कॉर्न, सारी सब्जियाँ, हर चीज़ यहाँ खुद उगाते हैं, इवन बिजली भी, and they survive. It's amazing. It's a beautiful गाँव. And people, यहाँ I just talked to somebody and he told me that यहाँ total आबादी लोगों की it's not more than 3,000. So I'm going towards that side and I found few women, they're working over there. So I'm curious कि उनसे बात करके देखते हैं कि वो अपना हर रोज़ का दिन कैसे गुजारते हैं। अभी हम मुगल साहब से जिनसे बात कर रहे थे, उनकी भांजी से अब हम और इन्फॉर्मेशन लेते हैं इस सारे गांव के बारे में। अस्सलाम वालेकुम राशिदा बेटा, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, ठीक है। आप ये क्या कर रही थी यहाँ? ये हम लोग इससे जो छलियाँ नहीं होती है वो अलग करके रखते हैं, फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, मक्खी का आटा बनाते हैं। अच्छा, तो ये सब मिलके बैठ के इसके दाने निकालेंगे जी, और निकालने के बाद फिर इसका आटा बनाएंगे जी। मकई कब काटते हैं? मकई हम लोग काटते हैं सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में। और फिर सारा ये जो आटा है आप लोग पूरी सर्दियाँ इस्तेमाल करते हैं? जी, बीच में से कभी कभी कनक का काट देते हैं, कभी कभी इसका काट देते हैं, मक्की का आटा। अच्छा, और आप और क्या बता सकते हैं हमें इस गांव के बारे में? ये कपड़े जो हैं ये आपने कहाँ से लिए? ये है कपड़ा आता रहता है, कराची से भी आता है और अच्छा, इस तरह बनता रहता है। और ये जो ये है, ये हम लोग खुद सिलाई करते हैं। ये आप लोग खुद सिलाई करते हैं? जी। इतनी खूबसूरत आपकी ये सिलाई है, तो ये पूरा आउटफिट यहाँ से खुद कढ़ाई भी खुद करते हैं और सिलाई भी खुद करते हैं। और मैंने देखा तकरीबन बहुत सारे जो ख़वातीन उन्होंने सेम कपड़ा पहना हुआ है। तो ये आजकल स्टाइल में है या हमेशा से यही होता है? हमेशा से यही होता है। अच्छा राज, तो बेटा आप स्कूल जाती हैं? जी। कौन सी क्लास में? 8 में। 8 में? जी। तो कैसा लगता है स्कूल? अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। और आपकी एक क्लास में कितने बच्चे हैं? हमारी क्लास में 44। 44? आपकी 8th ग्रेड में 44 बच्चे हैं? अच्छा, तो आपकी छुट्टियां कब होती हैं? छुट्टियां हमें बरसों में होती हैं, जब ये दिसंबर में होती हैं। अच्छा, तो आपकी जो जैसे कि रेगुलर पाकिस्तान में या किसी और जगह पे गर्मियों में होती हैं जी, तो आप लोग की दिसंबर में होती हैं? जी, इधर दिसंबर में होती है। और दिसंबर से लेकर कब तक? दिसंबर से लेके जनवरी तक होती है। ये तो 1 महीना हुआ, मेरा ख्याल है फरवरी तक होती होंगी। इसी तरह होती है। 2 महीने की? जी। अच्छा, तो आप उन छुट्टियों में क्या करती हैं? हम लोग करते हैं, बस हम लोगों ने ये गाय वगैरह भी रखे होते हैं, ये सारा कुछ रखे होते हैं, उनके साथ जाते हैं, सारा कुछ करते हैं, घर का काम करते हैं, घास दूर दूर से लाना पड़ता है वो लाते हैं, बस ये कुछ करते हैं। और अपने मम्मा का हाथ थोड़ा सा कर लेते हैं, बताते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मम्मा को कहना पड़ता है या आप खुद ही से कर देती हो? कभी कहना का पड़ता है, कभी खुद कर लेते हैं। मैंने देखा यहाँ आसपास बहुत सारे मवेशी, हर तरह के कैटल हैं, घोड़े हैं,
भैंसें हैं, तो आप इनको कैसे मैनेज करते हैं? ये सर्दियों में तकरीबन 7 महीने यहाँ पे सर्दी होती है, तो गर्मियों में ये हम आगे पीछे इनको चराने के लिए ले जाते हैं। उसके बाद इनको यहाँ से ही चारा इकट्ठा करके सर्दियों के लिए इकट्ठा कर देते हैं। ये जो आपने देखा है जगह जगह दरख्तों के साथ लटकाया हुआ, ये इन मवेशियों के लिए चारा है। तो ये हाँ जी, ये दरख्तों के ऊपर लटका देते हैं। स्टोरेज, हाँ जी, स्टोरेज करने का ये बेहतरीन तरीका है हमारा। तो उसके बाद सर्दियों में ये घरों में होते हैं, इनके लिए अलग शेड बनाया होता है, उसमें ये रहते हैं। तो सर्दियों में कहाँ लेके जाते हैं आप? सर्दियों में यहाँ ही रहते हैं ना, ये अलग इनका हमने बनाया हुआ है ना। अच्छा, हाँ, जगह बनाई हुई है। और मैं देख रही हूँ बहुत सारे दरख्त कटे हुए हैं, तो ये किस तरह से काटते हैं और इसका क्या करते हैं आप लोग? ये असल में इस तरह है कि यहाँ पे बहुत पहले एक क्लास हुआ करती थी, एक गवर्नमेंट का एक महकमा हुआ करता था। उस वक़्त ये दरख्त बहुत ज़्यादा मार्किंग की हुई थी, एक महकमा था उसका, उसने काटे थे। उसके बाद यहाँ पे फायर वुड हुआ करता था, आर्मी के लिए यहाँ पे जंगल काट लेते थे। उसके बाद यहाँ पे ये जो लोकल कम्युनिटी है, ज़ाहिर है इसको सर्दियों में और तो कोई चीज़ है नहीं है, ईंधन के तौर पे ये लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो ये तो इनकी मजबूरी है। लेकिन कोई काउंटिंग है, कोई तरीका है कि ज़ाहिर है आपका जो ये पूरा गांव है, इतने खूबसूरत दरख्त है, आहिस्ता 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 दरख्त काटते जाएंगे तो सारे दरख्त ख़त्म हो जाएंगे, तो इसको प्रिजर्व करने का क्या तरीका है? इसको असल में गवर्नमेंट अगर करे तो यहाँ पे वो बिजली वाला निज़ाम अगर दे दे, क्योंकि यहाँ पे लाइट वाला कोई निज़ाम नहीं है, बिजली वाला नहीं है। ये हमने अपने तौर पे छोटी छोटी मोटरें लगाई हुई हैं, उनसे हम सिर्फ बिजली हासिल कर सकते हैं। वो ईंधन के तौर पे हम उससे तो आपको कहने फायदा हो का सकता है कि अगर यहाँ बिजली हो तो फिर आप हाँ, ये दरख्त कटाई पे ये दबाव कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, हाँ जी, कम हो जाएगा। मैंने यहाँ एक शॉप देखी है जो कि हैंडीक्राफ्ट का सामान है, इसमें डिफरेंट पॉन्चो, शर्ट्स और बैग्स मुझे नज़र आ रहे हैं। चलिए चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये इतना खूबसूरत सामान है, यहाँ की जो लोकल ख़वातीन है वही बनाती हैं? नहीं, ये मकबूजा कश्मीर से आए, मकबूजा कश्मीर में जो लोकल है वो बना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर से, तो यहाँ कैसे आता है? यहाँ ये 1 साल पहले आ रहा था। अच्छा, वो स्टॉक किया हुआ है, वो अभी बस एंड जा रहा है। अच्छा, तो आप मुझे बताएं ये कौन सा टांका है? ये बिल्कुल हाथ का बना हुआ टांका है। ये हाथ का बना हुआ टांका है। अच्छा, और ये वाला भी हाथ से बना हुआ टांका है। तो आप यहाँ पर बेचते हैं? यहाँ पे बेचते हैं। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो खरीदते हैं? नहीं, लोकल तो नहीं खरीदते हैं, तो गेस्ट जो टूरिस्ट आते हैं। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, और ये बहुत ही खूबसूरत बैग लग रहा है मुझे। और ये बैग के ऊपर कौन सा टांका है? ये भी हाथ ही का है। और ये कोटी भी बहुत ही क्यूट लग रही है। आई थिंक इसके बारे में कुछ बताएं, ये आपकी कोई ट्रेडिशनल कोटी है या? ये कश्मीरी में जो है ना, ये कोटी है, आम बच्चे भी पहनते हैं, यहाँ कश्मीर के भी। घूमने के लिए लोग आते हैं जो टूरिस्ट हैं, उनके लिए सामान है, सो दे कैन जस्ट ग्रैब सम souvenirs from here. They're so adorable. So weather is really unpredictable over here. It's only 2:30 and looks like it's gonna rain. So we are heading out really fast. Everybody's rushing before rains. So I'm glad we have a rope over here, which will make my life easier. It's a big support. So we're rushing towards bottom ताकि जल्दी पहुंच जाए. For the people who are not pro at hiking, people like me of course, you need to be careful. First of all, you have to have a stick, a good one, and then make sure you put your solid foot first in the ground and then take a step. So this is a trick, and this rope was very helpful. When we were going up, we didn't follow this route, but now because it's a prediction for rain, we're taking a little longer route, but it's safer. Oh, I'm thirsty and getting tired. It started raining. That's a bad news.
Oh my goodness, hopefully we're almost in a jungle and it will take a time to get muddy. Before this gets muddy, we'll be down hopefully. I'm not going to look down. It does scare me. I don't know why. I was more confident when I was going, but I'm a little more nervous this time. But I think it's only a minute. I can survive. City. Oh my goodness. You cannot find this view anywhere else. I don't think so. Only in Kashmir. We did it. It was such a fantastic day. So we went to Arankale and talked to so many people, had chai, wonderful chai, and we saw such a wonderful stuff, so much information. I'm so thrilled to be there. And this is definitely one of my favorite places. And I loved the cable chair lift, whatever they call it. It was so much fun. It was a little scary, but fantastic. Definitely worth going and hiking and spending that time. मैंने देखा है कि तकरीबन सारी ख़वातीन ने ये ब्लैक और ये रेड पहना हुआ होता है। ये कोई इसकी कोई वजह है? बस ज़्यादातर लोग रेड और ब्लैक पसंद करते हैं ना, इस वजह से। अच्छा, और मतलब सेम पैटर्न बहुत सारे लोगों के मतलब तकरीबन यही पैटर्न होता है। तो ये बाजार में सिर्फ जो ब्रांड है ना वो डिफरेंट होता है, बाकी जो ना फैब्रिक सेम होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। कुदरत ने कश्मीर में हर किस्म की जड़ी बूटी पैदा की है। हमारे पास यहाँ पतरीस और लहसुन, इसके अलावा पुट कोड़ बड़ी मशहूर जड़ी बूटियाँ हैं जिनसे कि तकरीबन हर किस्म की कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छी जड़ी बूटियाँ यहाँ मिलती हैं। So my halim is ready. It smells so delicious. I really want to see कि यहाँ इनके लोकल कपड़े कैसे होते हैं. Let's go and check it out. मैंने देखा है कि तकरीबन सारी ख़वातीन ने ये ब्लैक और ये रेड पहना हुआ होता है. ये कोई इसकी कोई वजह है? बस ज़्यादातर लोग रेड और ब्लैक पसंद करते हैं ना, इस वजह से। अच्छा, और मतलब सेम पैटर्न बहुत सारे लोगों के मतलब तकरीबन यही पैटर्न होता है. तो ये बाजार में सिर्फ जो ब्रांड है ना वो डिफरेंट होता है, बाकी जो ना फैब्रिक सेम होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो है कश्मीरी जुब्बा, ये ज़ाहिर है मैंने बहुत सारी ख़वातीन को पहने हुए देखा है मोस्टली. तो ये कपड़ों के ऊपर से पहनते हैं? जी जी, ऊपर से पहनते हैं कपड़ा. अच्छा, तभी सब तकरीबन सबका एक जैसा होता है. अच्छा, तो ये एक तरह का इट्स लाइक अ कवर अप, समथिंग दैट दे वेयर ऑन टॉप ऑफ देयर क्लोथ्स. तो इसको बनने में कितना टाइम लगता है? एक हफ्ता. यहाँ आपको ऑर्डर दें तो एक हफ्ते में बन जाएगा. और इसके ये कौन सी कढ़ाई है? ये मशीन की कढ़ाई है, यहाँ लोकल मशीन होती है ना. अच्छा. हमारे साथ केल के बहुत मशहूर हकीम है, उनसे इतनी मज़े की बातें हो रही थी तो आई थॉट यस वी हैव टू डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस ये कितनी मज़े की दवाइयाँ जो कि जड़ी बूटियों से बनती हैं, उनका इलाज करते हैं. बहुत सारे लोग इनके पास आते हैं इन सारी बीमारियों का इलाज करने के लिए. हकीम साहब, आप बताएं हमें जो कश्मीर की जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनती हैं कौन कौन सी हैं और कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? जी, कुदरत ने कश्मीर में हर किस्म की जड़ी बूटी पैदा की है. हमारे पास यहाँ पतरीस और लहसुन, इसके अलावा पुट कोड़ बड़ी मशहूर जड़ी बूटियाँ हैं जिनसे कि तकरीबन हर किस्म की कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छी जड़ी बूटियाँ यहाँ मिलती हैं. और ये जितनी दवाइयाँ हमने बनाई हैं ये कुदरती जड़ी बूटियों से हैं. अच्छा. इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली कि जो जिस पे मतलब डाउट हो कि यार ये चीज़ ठीक नहीं है, ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा. ये सब दवाइयों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट, फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, यानी कि इनका साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं. बिल्कुल, नेचुरल चीज़ों का तो साइड इफ़ेक्ट होता ही नहीं है. तो ये ज़ाहिर है बेसिकली सारे मिनरल्स हैं. जी जी, जो भी आपको पहाड़ों से और पौधों से, प्लांट से चीज़ें मिलती हैं वो मिनरल्स हैं. तो आप मुझे बताएं कौन सी सबसे मशहूर है?
और किस चीज़ के लिए? सबसे मशहूर चीज़ यहाँ पतरीस है, जो कि लोग शुगर के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसका शुगर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसके अलावा यहाँ का लहसुन बहुत मशहूर है, जो कि यहाँ से जिसको आप थोम कहते हैं। हाँ। थोम वो मार्केट में जाता है, आगे फिर मेडिकल वाले बड़ी कंपनियां खरीद के उससे इंसुलिन बनाती हैं। जो आपका पूरा प्रोसेस है कितना टाइम लगता है? ये तकरीबन जी दवाई अपने अपने हिसाब से बनती है। कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे 20 दिन लग जाते हैं। अच्छा। कोई जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं 1 हफ्ते में तैयार हो जाती हैं, मतलब उनका पेस्ट बन जाता है। कोई चीज़ें इसमें ऐसी भी हैं जिन पे 1 महीना लगता है। अच्छा, जो ये सारी हर्ब्स हैं, मेरे जैसा बंदा अगर जाए और बस तोड़ ले तो वो उसको इस्तेमाल कर सकता है? इसको किसी प्रोसेस से गुजार? नहीं, इसमें ऐसी जड़ी बूटियां हैं, अगर खुदा ना खास्ता आपने उनको वैसे चेक कर दिया जिस तरह की अभी मेरी दवाई आपने खाई है जी, तो डेथ हो सकती है। इतनी खतरनाक दवाइयां जड़ी बूटियां हैं। तो बगैर किसी ऐसे बंदे के जिसको एक्चुअली पता हो जैसे आप, उसके बगैर नहीं खानी चाहिए। क्या वजह कि यहाँ इतनी ज्यादा है? बस जी, असल में कश्मीर को जन्नत की वादी कहा गया है और अल्लाह पाक ने इसमें ये कुदरती जड़ी बूटियां रखी हुई हैं और यहाँ पे ये चीजें इसलिए ज्यादा हैं, वरना तो ये आप जड़ी बूटियां जो है मतलब कहीं भी उगा सकते हैं? नहीं, ये कुदरत। देखें यहाँ ऐसी जड़ी बूटियां मतलब आपके अपने घर में ही? मैं कह रही हूँ, मैं आपको समझाता हूँ ना, इसमें कोई जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो आसमानी कड़क से पैदा, जो वाइल्ड हैं, जो खुद ही से आती हैं, खुद ही आसमानी कड़क से पैदा होती हैं। ये बिजली है ना, ये पहाड़ों पे वो उनको पैदा करती है। यहाँ पे जिस तरह के गुच्छी, वो एक गुच्छी नमा एक जड़ी बूटी है, वो भी बहुत महंगी है, मेरे ख्याल से 30-40 हज़ार रुपए किलो बिकती है वो। अच्छा। हाँ, वो पैदा होती है आसमानी बिजली से। जब आसमानी बिजली गरजती है तो उससे अल्लाह पाक उसको ज़मीन से पैदा करता है। जड़ी बूटियों का एक सीज़न होता है, जैसे यहाँ से जूं ही बर्फ उठती है ना, इस ज़मीन में अल्लाह पाक ने ऐसे मदीनियात, ऐसे सोना चांदी रखे हुए हैं कि वो फ़ौरन उग जाती हैं। ये इस तरह के हमारे आप देख लें प्रबाद, मानसरा, इस्लामाबाद, लाहौर, इनमें ये चीज़ें नहीं होती। ये सिर्फ ये कुदरती चीज़ें अल्लाह पाक ने कश्मीर में रखी हुई हैं और बहुत ज़बरदस्त है। एब्सोल्युटली, कश्मीर तो बहुत इनरिच्ड है मिनरल्स के लिए, और जैसे जैसे हम अपने बिग सिटीज़ में रहते हैं तो हम सब के अंदर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है मिनरल्स की। मैंने जो कश्मीर से जो शॉपिंग करनी है वो सिर्फ एक्चुअली जड़ी बूटियों की, एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि इनको ट्राई करूँगा। After such a cold and adventurous hike of Arankale, I was in a mood of having something warm. So for that purpose, I thought of making halim. So I'm in a process of making halim and I wanted to share a recipe with you. It's a very easy, quick recipe. This box comes with lentils and a masala in it. So you just boil all the lentils in a separate pot, like I'm doing it over here, and cook it for hours until it's tender. This is my beef. It's all tender and soft and ready to be mixed in lentils. So it's very easy, quick recipe. You mix both of them together and put tadka on it with onions or chilies, and it's all set. And it's perfect for chilli nights. So my halim is ready and it smells so delicious. We know that Kashmir is so enriched in herbs and minerals. So water is passing through all these herbs and coming over here. So I'm sure it cures not only sugar and blood pressure, many more stuff. इस वक्त हम लोग शारदा के एक बहुत ही पुराना टेम्पल / यूनिवर्सिटी में है। बाजी शारदा यूनिवर्सिटी जो है ये आज से 1500 साल पहले की है। शारदा जो लफ्ज़ है ये संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है जी। इसका लफ्ज़ी मानी है इल्म की देवी। आपको नज़र आ रही है गंगा चोटी, जो कि सतह समंदर से तकरीबन 10,000 फीट की बुलंदी पर ये मौजूद है। ये वो दरिया है जहाँ से इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से पानी आता है, और सिर्फ पानी नहीं, यहाँ से हमारे मुसलमान कश्मीरी बहन भाइयों का खून भी आता है। It's all clear, you can travel now. So me and my team, we're all ready to leave Sharda to our next destination. Firing की आवाज़ आ रही है। खौफ से बरसरे पैकार
सफर जारी है। दम बदम नाराए ललकार, सफर जारी है। क्या कोई तीर, क्या तलवार, सफर जारी है। लाख बढ़ जाए ये आजार, सफर जारी है। रास्ते रोक सका है कोई परवानों के, काफिले और निकल आएंगे दीवानों के। अर्ज़े कश्मीर तेरे जलते चिनारों की कसम, खाक में रोंदे गए चांद सितारों की कसम, खून में लुथरी हुई जर्द बहारों की कसम, दर्द में डूबे तेरे गुम नजारों की कसम। पाँव से उलझी ये जंजीर जफा टूटेगी, सीनाए शब से किसी रोज सहर फूटेगी। जुल्म की जोर की मयाद बढ़ाता है तो क्या, रोज एक कहर नया जबर कटाता है तो क्या। अज़्म की राह में बारूद बिछाता है तो क्या, अमन के नाम पे एक हश्र उठाता है तो क्या। दस्ते सफाक तेरा कार जफा कुछ दिन है, मेरी वादी में ये नौहों की सदा कुछ दिन है।